हेलो गाइस। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल का यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कवर करेंगे। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स के मीनिंग्स प्लस उनके पीवाईक्यूज ऐड करे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग की ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल लेटर। आप देख सकते हो फर्स्ट वी हैव टू राइट अ सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर. This is the example, like it is an inquiry letter. You can just see here. Okay, so this is a sender's address, and this is date. This is receiver's address, the subject, salutation, body, and the closing part. Okay, so here is the question that has been asked last year. Write a letter to your bank requesting a loan facility of rupees 15 lakh for a new business. Also give the necessary details of a project. So this is how you have to write. This is the structure how the letter should be written in your paper. So just go through it. This is the another example. You can also read here. So this is the question. It was asked in 2023 question paper, like write a letter style report for submission to the board of directors regarding the market potential of a new brand of electronic equipment. Basically इसमें आपको letter नहीं लिखना है, it's a letter style report. Basically आपको इसमें report लिखना है, but जो structure होंगे वो letter की तरह होंगे. तो you just give your hand on. This is the another example of bargaining letter. Now, the next topic is memo. Memo, which is also known as memorandum. It is a written message typically used in a business or organizational context for internal communication. Suppose आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो और there's a company, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं. अब जो एम्प्लॉयज है उनके बीच में ही कुछ बातें सर्कुलेट हो रही है, कुछ मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है, उसे हम मेमोरेंडम कहते हैं. ओके, सो इट सर्व्स वेरियस पर्पसेस सच एज ensuring clarity, providing information, or making request. A memo is usually directed at a specific group, department, or individuals within the organization. As I told कि ये सिर्फ organization के अंडर पे ही वर्क करता है, like within the organization सारी चीजें सर्कुलेट होती है. Memos are concise, straightforward, and generally focus on a single subject, intended to promote an action, provide updates, or share decisions. Suppose आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी में आपकी जो ऑफिस टाइम है वो उसको चेंज करना है और उसको चेंज करके आपको एक मैसेज सर्कुलेट करना है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. तो उसको जो हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड मेमो और मेमोरेंडम. This is the example of memorandum and the structure of memorandum. This is how it should be written. Now, circular. Circular is a formal communication sent to a large group of people within an organization, institute, or community. Circulars are used to disseminate information informally to everyone in the group, ensuring that the message is consistent and reaches all intended recipients. Okay, so what is circular? Circular basically एक formal communication होता है. It is also somehow like a memorandum only. ये भी organization के within ही circulate होता है. आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपके कॉलेजेस में आपके जो एग्जाम्स के टाइम टेबल है या फिर कुछ चेंजेस अगर होते हैं आपके टाइम में तो उसके एक मैसेज सर्कुलेट होता है, आपके ग्रुप्स में होता है, आपके क्लास ग्रुप में होता है, अनऑफिशियल ग्रुप में होता है. तो दैट इज व्हाट सर्कुलर इज. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. Now, what are the primary difference between a circular and a memorandum in terms of their purpose, audience, and distribution within an organization? This is the PYQ question. Okay, it was asked in, I guess, 2024. So, see the purpose. सर्कुलर का पर्पस क्या होता है? टू इन्फॉर्म अ लार्ज ग्रुप अबाउट जनरल मैटर लाइक पॉलिसी चेंज, इवेंट और अनाउंसमेंट. सपोज आपके कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है तो एक लार्ज ग्रुप के पास इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है कि ये वाली इवेंट हमारे कॉलेज में होने वाली है, ऐसे होने वाली, दिस एंड दैट, समथिंग लाइक दैट. मेमोरेंडम दिस टू इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट स्पेसिफिक इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट्स अबाउट अ पर्टिकुलर इशू. बट ये क्या है? ये बेसिकली बस एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए होता है, डिपार्टमेंट के विद इन ही सर्कुलेट होता है. Okay, now audience meant for all employees or a wide audience within the organization. ये जितने भी employees हो, जितने भी audience है, सबके लिए होता है. Meant for a specific person, team or department. Distribution distributed widely across the organization, distributed internally and selectively. ये कुछ लोगों के पास जाता है और ये widely सबके तक पहुंचना चाहिए. जितने ज्यादा लोगों के पास पहुंचे वो ज्यादा better है. Tone usually informative and formal, sometimes general in nature. Often direct, brief, and formal.
मेमोरेंडम हमेशा ही फॉर्मल होता है और डायरेक्ट होता है एंड ब्रीफ होता है, बट सर्कुलर कैन बी लाइक इंफॉर्मेटिव होता है। इसमें हम बेसिकली इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हैं और इन कैन बी फॉर्मल। फॉर्मेट में भी डिस्प्लेड आई हैव जस्ट लाइक नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले हो जाता है, ईमेल के थ्रू सेंड किया जाता है। मेमोरेंडम के क्या होता है कि ये इसके जो फॉर्मेट है लाइक टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट ऐसे शुरू होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज notice. Notice is a formal announcement meant to inform a specific group of people about an important issue, upcoming event, rule or policy. Notice like किसी भी चीज की अनाउंसमेंट करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना, एक स्पेसिफिक ग्रुप को प्रोवाइड करना, और जितने भी इवेंट्स है, रूल्स है, पॉलिसीज में अगर चेंजेस आई तो उन सारी चीजों को जो अगर अनाउंसमेंट करना है तो उसके लिए हम नोटिस का यूज करते हैं। ओके, this is the example of notice and this is how the notice should be written. First the notice, then the topic, and then the body, and this is the just salutation part. So see, now the second next topic is paragraph writing. पैराग्राफ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस और अ सिंगल सेंटेंस दैट फॉर्म्स अ यूनिट। लाइक हम बहुत सारे सेंटेंस को ज्वाइन करके एक पैरा बनाते हैं, दैट इज व्हाट पैराग्राफ इज। ऑलवेज पुट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। दिस इज द टिप कि आपको कोई भी टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पता है, ऑलवेज ट्राई टू पुट इट फर्स्ट, जिससे क्या होता है कि आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। ओके, elements of a paragraph. Unity, the entire paragraph should concern itself with a single focus. Okay. Coherence, it means that every new sentence shall follow the previous one. Like आपने एक sentence complete करा, full stop करा, अब आप जो next sentence start करोगे वो उससे like थोड़ा सा relatable होना चाहिए. That's what. Pronouns, repetitions, connectedness and synonyms. Next, we have reports. Scientific and technical report is a document that communicates research, studies, experiments or any technical information. तो ये basically किस लिए होता है? ये एक kind of document होता है जो research, studies, experiments और किसी भी technical information के लिए use किया जाता है। Purpose क्या होता है हमारे report का? To inform, to analyze and document finding, experiments or technical data in a clear, organized and methodical manner. Okay. These reports are essential in various fields such as engineering, science and टेक्नोलॉजी। रिपोर्ट्स बेसिकली हमें लाइक आपने किसी चीज के बारे में स्टडी करा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा और उसके बारे में आपने रिपोर्ट बनाया क्योंकि आपको सबमिट करना होता है, तो दैट इज व्हाट साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिपोर्ट इज। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, द फर्स्ट वन इज रिसर्च रिपोर्ट। पर्पस क्या होता है? रिसर्च रिपोर्ट इज यूज्ड टू प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ अ साइंटिफिक स्टडी। आप किसी चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, किसी चीज के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो आप उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाकर देते हो, दैट इज कॉल्ड रिसर्च रिपोर्ट। इट इज टिपिकली इंक्लूड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। एग्जाम्पल क्या है? रिसर्च रिपोर्ट माइट फोकस ऑन अ स्टडी एग्जामिनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर डिजीज। सपोज कोई साइंटिस्ट है जो लाइक किसी न्यू ड्रग्स पे वर्क कर रहा है कि हाउ टू फाइंड द लाइक क्योर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, तो उसके बारे में वो उसको स्टडी करता है एंड देन ही मेक्स अ रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड रिसर्च रिपोर्ट। सेकेंड इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आउटलाइंस द डिटेल्स एंड आउटकम्स ऑफ अ स्पेसिफिक रिपोर्ट। किसी भी आप कोई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, सपोज आप लाइक अगर आपकी सीएससी ब्रांच है तो आप अगर कोई न्यू आइडियाज पे वर्क कर रहे हो, हैकेथॉन के थ्रू आपने एक आइडिया इन्वेंट करा, उस आइडिया पे वर्क कर रहे हो, तो उसके बारे में जो भी डिटेल्स आप बनाओगे, उसके कंप्लीट इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट बनाओगे, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इट फोकसेस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, प्रोग्रेस एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इट इंक्लूड्स प्रोजेक्ट्स पर्पस, स्कोप, टाइमलाइन, बजट एंड द रिजल्ट अचीव्ड. Okay. The example is a report, project report for the development of a new software system would include objectives, the development process, testing procedures, challenges faced and the final outcome. ये सारी चीजें अगर आप किसी भी सिस्टम लाइक न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। नाउ ड्राफ्टिंग एंड डिलीवरिंग अ स्पीच। स्पीच क्या होता है? इट स्पीच इज अ टॉक गिवन टू अ लार्ज गैदरिंग। लाइक आपके स्कूल में ऐसा होता है कि लाइक इंडिपेंडेंस डे पे आप स्पीच देते हो। स्पीच बेसिकली क्या होता है कि आप एक बहुत बड़े से ग्रुप के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहे हो और किसी टॉपिक पे कुछ बातें शेयर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, नॉट लाइक इंफॉर्मेशन, लाइक फैक्ट्स। Okay. Understanding the environment, the venue. Be familiar with the physical environment. Check stage, height, mic, light and all. Organizers. Be aware of the name of organization, president's name. Okay. Time available. Be on time. Other speakers understand their points of view. Okay. Understanding the audience. They receive the message first.
They decide whether the informational should reach the primary audience and then the real person for whom the message is sent. टिप्स क्या क्या है यहाँ पे, लाइक स्पीच प्रिपेयर करने के लिए तो पहले अपने ऑडियंस को जानो, आपके ऑडियंस लाइक उनकी वैल्यूज क्या है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनके मूड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीच को डिलीवर कर पाओगे. प्लान एंड स्ट्रक्चर, स्टार्ट विद एन अटेंशन ग्रैबिंग ओपनिंग. एक अच्छी ओपनिंग के साथ आपको स्पीच शुरू करनी चाहिए. प्रैक्टिस, use language effectively, choose words that resonate with the tone and purpose of the speech. Now, so here we come ends to our like unit 3. Now we'll proceed to unit 4. So unit 4 mein we already have the grammar part, so that's why I have this practice sheet. Okay, so this is the article. This is how the questions are asked in your PYQs. Like if you check the PYQs of 2024 and 2023, you will find these kind of questions. This is how the questions are asked of articles. Okay, you can just go through it and practice how much you want. Tenses. Don't worry about the PDFs. It will be provided in the group. So the answers are also mentioned here. Active and passive voice. You can just go through it, and the direct and indirect speech. Degree of comparison and common errors. Okay. You can just go through it. The next topic, the last topic is listening, the concept of learning and listening. So what is listening? It is the ability to accurately receive and interpret message in the communication process. जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आप कितने ध्यान से और कितने अच्छे से अटेंटिवली आप अपने जो सेंडर की जो बात है आप उसकी सुन रहे हो और फिर आप उसको उस मैसेज को समझ रहे हो. That is what listening is. Listening is key to all effective communication. Without the ability to listen effectively, messages are easily misunderstood. अगर सामने वाले ने कुछ बोला और आपने उसे मिसअंडरस्टूड कर लिया, आपने अच्छे से सुना नहीं, पूरी बात आपने सुनी नहीं और आपने लाइक कुछ और कह दिया, आप उन्होंने बोला कुछ और आपने समझा कुछ और, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. लिसनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू कैन हैव. एन एक्टिव पर्पस ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज. लिसनिंग is the process of receiving, constructing meaning from and responding to spoken. Process क्या क्या होता है देखते हैं. पहला तो लाइक हम पहले मैसेज रिसीव करते हैं, सुनते हैं जो भी सेंडर ने बोला, फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर याद करते कि उन्होंने बोला क्या था, देन इवेल्युएट करते कि अब मुझे इसके रिप्लाई में क्या बोलना है, एंड देन हम लास्टली अपना फीडबैक देते हैं. ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग. वी शो दैट वी आर सीरियस. इससे क्या होता है, आगे वाले पर्सन को लगता है कि वो पर्सन मुझे अटेंटिवली सुन रहा है एंड ही इज लाइक सीरियस अबाउट द टॉपिक आई एम टॉकिंग. We display respect to others' point of view. Okay, helps us to learn, helps us to adapt and understand, empathize. Okay, now the basic types of listening. There are 4 types: active listening, selective listening, empathetic listening, and ignoring listening. फर्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग. अंडरस्टैंडिंग ऑल थिंग्स. आप एकदम लाइक बिल्कुल ही आप अटेंटिवली आप सुन रहे हो. दैट इज व्हाट एक्टिव लिसनिंग इज. प्रॉपर इंटरैक्शन एंड प्रॉपर फीडबैक. Next is selective English. We remember only selective portion. Topic is not to our liking. Like we only remember the part जो हमें अच्छा लगा, जो हमसे relate कर गया, और बाकी जितने भी बातें कही गई थी वो हम उसे ignore कर देते हैं, like which we didn't like. Next is empathetic listening. When we listen empathetically, we go beyond sympathy to seek a truer understand how others are feeling. अगर हम like empathetically सुनना, मतलब इसका मतलब क्या है कि suppose कोई सामने वाला इंसान है, वो आपसे अपनी like most tragic story share कर रहा है और somehow आप उससे कहीं ना कहीं relate कर रहे हो, तो आप उसको sympathy दे रहे हो, तो आप और ज्यादा उसमें एंगेज हो जाओगे और अच्छे से आप उसकी बातों को सुनोगे. दैट इज व्हाट एम्पैथेटिक लिसनिंग इज. दिस रिक्वायर्स एक्सीलेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड क्लोज अटेंशन टू द नॉसेंस ऑफ इमोशनल सिग्नल्स. व्हेन वी आर बीइंग ट्रूली एम्पैथेटिक, वी एक्चुअली फील व्हाट दे आर फीलिंग. The fourth is ignoring listening, not listening at all. Is pretty insulting to others. It can lead to strained relations. Okay. Now, next is barriers of effective listening. Now, what are the barriers that comes between like effective listenings? Okay, there are some common barriers in this process. First, प्री जजमेंट अबाउट द स्पीकर. हम स्पीकर को पहले ही जज कर लेते कि वो हमें क्या ही समझाएगा या फिर वो क्या ही बोल रहा है. नो, आई डोंट वांट टू लिसन टू देम, समथिंग लाइक दिस. ओके, दैट वी शुड नॉट. Assuming that the speaker is going to give some unimportant information. हम पहले ही ऐसा सोच लेते हैं कि वो हमें कुछ तो
लाइक अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो हमारे काम की नहीं है, बट ऐसा नहीं होता. अराइविंग लेट फॉर अ स्पीच, प्रेजेंटेशन और लेक्चर, दिस इज नॉट गुड, दिस इज ऑल्सो अ बैरियर. जजिंग द स्पीकर बाय हिज और हर्स मैनरिज्म, वॉइस, अपीयरेंस, एक्सेंट, etc. Lack of concentration or interest, avoiding listening to difficult, boring or complex information and selectively listening only to what is considered interesting. सारी बातें को इग्नोर कर देना, ओनली जो पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा, जो आपको रिलेट करा, बस उसको सुनना इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैरियर. स्पीकर और लिसनर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय डिस्टर्बेंस. ओके, नाउ हाउ टू लिसन इफेक्टिवली. अब कैसे हम इफेक्टिवली सुन सकते हैं. स्टॉप टॉकिंग, बी साइलेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्वाइट. जब अगर आपके आगे वाला इंसान बोल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो आपको चुपचाप से सुनना होता है. शो इंटरेस्ट, एम्पैथाइज, आस्क क्वेश्चंस. ओके, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, टेक नोट्स, लिसन क्रिएटिवली, put your entirety, send feedback, avoid or eliminate distraction, try to gather information about the topic to develop interest and familiarity. So here we come to the end of the topic, and the 3 and 4 units are covered in this video. Thank you.